So once again, welcome students to Suraj School Balana live classes. As you know that due to this lockdown, there is no class in school campus, but to utilize your time nicely, we have started these live classes for you guys to invest your time, not to waste your time. So as you know that now we are going to start our program, our class for junior and senior classes. This program we teach up to 8th class, 6 to 8th class we teach this program. ये जो हमारा प्रोग्राम है जूनियर प्रोग्राम ये हम 6 से 8th क्लास तक पढ़ाते हैं. And in this program today we will learn about our English language. First concept we will discuss about it. And I would like to let you know that these language classes, these are associated by Excellent Institute of English Language, and these are being provided in Suraj School Balana. And as you know, this junior program, it is specially designed program for just only junior classes. 6 to 8 class students, they can nicely learn English language with the help of this program. 6th class से 8th क्लास तक के बच्चे बहुत ही आसानी से इस प्रोग्राम की हेल्प से मदद से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं. As you know that English language is required, is important in every field nowadays. आजकल इंग्लिश लैंग्वेज हर क्षेत्र में बहुत ही लाभदायक है और जरूरी भी है, कंपल्सरी है. So it this program, Excellent English Language Program, makes every school really English medium, which creates English language environment. जो Excellent Language Program है वो वास्तव में ही इंग्लिश माध्यम को एक परिभाषा देता है, एक डेफिनेशन देता है, जैसे कि जो कि स्कूल प्रेमिसेस में, स्कूल प्रांगण में अंग्रेजी माध्यम को क्रिएट करता है, उत्पन्न करता है. With the help of this program, each and every student of the school which is having these excellent classes, every student starts speaking English just within few days and few months. Okay, in a very short time period, students just start speaking English as if it's their mother tongue and it's their first language. Okay, so now I would like to discuss about our first junior concept. Okay, बेटा आज हम अपने first concept के बारे में discuss करेंगे. Okay, though this is a very nice program और सबसे easy program है English language के लिए. Okay, तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है हमें? हम इस फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे आज अबाउट we will learn in today's our first concept about future action. किसके बारे में सीखेंगे? future action. Okay, future के बारे में सीखेंगे. As you know, we have been learning about this future, past, present. हम सीखते भी आ रहे हैं, हमें 5th क्लास से ही पढ़ाया जाता है कि बेटा 4th क्लास से टेंसेस पढ़ाए जाते हैं कि this is present tense, this is past tense, this is future tense. But after that also, after having learned these, we are not able to speak. फिर भी नहीं बोल पाते हैं. Okay, because the way of teaching is not as much proper which is required to be taught. Okay, so today we will learn about our future action. आज हम सीखेंगे future action के बारे में. तो future action को हम अपने मदर टंग में यानी कि मातृभाषा में भी यूज करते हैं. हम अपने फ्यूचर टेंस को, भविष्य काल को कैसे दर्शाते हैं? by using some special keys and some certain suffixes. like सबसे पहले हम इस चीज को सीखेंगे हमारी मातृभाषा में, फर्स्ट लैंग्वेज में हम कैसे शो करते हैं इसको. फ्यूचर एक्शन को कैसे शो करते हैं? by using some certain keys. हमारे पास कुछ फिक्स की होती हैं इस सब को, एक्शन को, फ्यूचर एक्शन को शो करने के लिए हमारे फर्स्ट लैंग्वेज में. फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि मातृभाषा हिंदी. ओके, फर्स्ट लैंग्वेज में कैसे शो करते हैं? वी शो बाय यूजिंग गा, गे एंड गी. क्या यूज करते हैं? गा, गे एंड गी. टू शो इन फर्स्ट लैंग्वेज व्हाट डू वी शो? वी शो फ्यूचर एक्शन बाय यूजिंग दिस थिंग्स. क्या शो करते हैं? गा, सॉरी, फ्यूचर एक्शन बाय यूजिंग गा, गे, गी. लाइक अगर हम फ्यूचर एक्शन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि मैं खाऊंगा, यानी कि फ्यूचर में. ओके, नॉट इन प्रेजेंट, नीदर इन पास्ट. ओके, आफ्टर दैट वी विल से दैट. इसके अलावा हम बोलते हैं कि मैं
खेलूंगा, वो भी फ्यूचर में ही होगा। हम फ्यूचर एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, आप बोलते हैं कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ओके, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ओके, मैं क्लास अटेंड करूंगा। ओके, मैं टीवी देखूंगा। ओके, हम क्रिकेट खेलेंगे। ओके, वो गाना गाएगी। सो व्हाट डू वी यूज करते हैं, हमारे पास यही स्पेशल कीज हैं टू शो इन फर्स्ट लैंग्वेज दीज आर गा गे गी। क्या यूज करते हैं बेटा? गा गे एंड गी टू शो द फ्यूचर एक्शन इन आवर फर्स्ट लैंग्वेज। ओके, इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या यूज करते हैं, गा गे गी। और भी हम बहुत सी चीजें बोलते हैं कि मैं लिखूंगा। ओके, अलॉन्ग विद दिस फ्यूचर एक्शन कुछ और भी चीजें होती हैं जो हम इन सब सफिक्सेस से शो करते हैं। लाइक हमारा प्लान होता है, किसी भी चीज के बारे में हम प्लान करते हैं तो उसके लिए भी हम यही सफिक्सेस यूज करते हैं, यही वर्ब मॉडिफिकेशन यूज करते हैं। ओके, लाइक प्लान होता है आपका कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनूंगा। ओके, आप बोलते हो कि हम एक दिन कामयाब होंगे, ये आपकी प्रेडिक्शन होती है, भविष्यवाणी होती है। ओके, टीचर बोलते हैं कि आप क्वेश्चन लर्न करोगे। ओके, ये फ्यूचर का एक्शन होता है। और आपका एम होता है, टारगेट होता है। ओके, और होता है एक्शन और प्लान होता है हमारा कि मैं कल मार्केट जाऊंगा। उसके बाद आपका प्लान होता है कि मैं एक यूनिफॉर्म खरीदूंगा, स्कूल यूनिफॉर्म खरीदूंगा। फिर आपका एक और प्लान होता है कि यूनिफॉर्म के साथ में एक पेयर शूज भी खरीदूंगा। ओके, उसके बाद बोलते हो कि मैं स्कूल बैग लाऊंगा। दैट इज योर प्लानिंग। ओके, सो अलोंग विद फ्यूचर एक्शन वी शो आवर प्लान आल्सो। इसके साथ हम प्लान को भी शो करते हैं, किससे? बाय यूजिंग गा गे गी। तो गा गे गी से हम क्या शो करते हैं? हम अपना प्लान भी शो करते हैं। ओके, सो क्या क्या किसके लिए यूज करते हैं गा गे गी को? फ्यूचर एक्शन के लिए और प्लानिंग के लिए। ओके, मोर एग्जांपल और भी आपके प्लान होते हैं कि इस साल मैं सूरज स्कूल में एडमिशन लूंगा। ओके, फाइनली क्या आया? गा। इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर एक्शन और अबाउट अ प्लान। ओके, इसके अलावा आप बोलते हो कि मैं आज मैगी खाऊंगा। ओके, हम मूवी देखेंगे। ओके, इसके अलावा आप बोलते हो कि कोई घर से बाहर नहीं जाएगा। That is also a future action. Okay, so it means we are talking, if we use ga ge ki, it means either we are talking about the future action or we are talking about a plan or prediction. Understood? Is that clear up to here? समझ आया? So again I am telling that beta if we have to learn about the future action and plan, we have to use these suffixes in our first language, यानी कि हिंदी में। फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि हम हिंदी की बात कर रहे हैं। ओके, if we have to learn same thing future action in English, English यानी कि हम सेकंड लैंग्वेज मान के चलते हैं हमारी, तो भी हमें कुछ सफिक्सेस, कुछ सर्टेन, कुछ फिक्स वर्ब मॉडिफिकेशन यूज करने होते हैं इसके लिए। ओके, क्या यूज करते हैं? सेकंड लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में। अभी हिंदी में तो आता है सबको, फर्स्ट लैंग्वेज में सभी को आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं खाऊंगा, आप बोलते हो कि हम खेलेंगे। ओके, मम्मा बोलते हैं कि तुम आप तो नहीं बोलोगे। ओके, सो लाइक दैट वी यूज गा गे की टू शो इन फर्स्ट लैंग्वेज। अब समय है कि हम सेकंड लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको, फ्यूचर एक्शन को। ओके, वेरी सिंपल। Again we have to use some certain modifications. Again I would like to let you know that if you talk about the second language, it means we are talking about English. इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के बारे में। So very simple beta, if we have to talk about our second language and if we have to show our future action in our second language, then again we have to use some verb modification and some suffixes. What are these? We use to show these things, future action and our planning in our second language. We use क्या यूज करते हैं? will and shall. Very nice. क्या यूज करेंगे बेटा? Again I am repeating. We will use will and shall to show future action in our second language, or you may say in English. समझ आया यहाँ तक सभी को?
Beta, today we are discussing about our junior first concept, and in this concept we are learning about future action. And in future action, in first language, first of all we will express the future action. Future action को हम सबसे पहले first language में एक्सप्रेस करेंगे. फर्स्ट लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करते हैं फ्यूचर एक्शन को? बाय यूजिंग गा, गे, ही. क्या यूज करते हैं? गा, गे, ही. फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि हिंदी. ओके, अब हम फ्यूचर एक्शन के बारे में सेकंड लैंग्वेज को में सीखने के लिए, इंग्लिश में सीखने के लिए हम फर्स्ट लैंग्वेज का यूज करेंगे. दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ओवर इट मोर. इसीलिए फर्स्ट लैंग्वेज को बार-बार प्रेशराइज किया जा रहा है. ओके, और फोकस किया जा रहा है. ओके, so it means now it's time to learn about, so learn in second language. अब हम बात करेंगे कि सेकंड लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करेंगे. जैसे अभी आपको बताया था मैंने, we use again some keys like will or shall in our second language in English. Okay, इसके लिए to show future action in second language. Is that clear? समझ आया? Okay, so up to now we have learned just how to show this second language, sorry, future action and plan in second language. Now let's make some sentences like what do we have to use if we find the key in first language, then we have to use will, shall. Okay, like let's make one example. If in first language or in Hindi जाऊंगा, then in English what do we have to speak? We will speak will go. क्या यूज करेंगे बेटा? will go, यानी कि will के साथ जो भी हम एक्शन करेंगे, जो भी हमारी वर्ब होगी वो यूज करेंगे. ओके, क्रिया को यूज करेंगे. ओके, लाइक जाना क्या होता है? go. सो हमने क्या यूज कर दिया है? will go. ओके, आफ्टर दैट another example, if you talk about that, if you say like in first language in Hindi you say this thing that कि मैं खाऊंगा और खाऊंगा, then in English will eat. Very nice, good. Okay, now don't have to be confused here that why is using will with I and we. Beta, there are two types of grammar. Our program follows advanced grammar. Okay, according to that there is no difference in will and shall. We can use will with I, okay, and will with shall also. The very rare cases are there where we have to use shall. Okay, so हम I और we के साथ भी will कर सकते हैं. Don't have to be confused. Okay, another example like खेलूंगा, then in English will play. Okay, very nice, good. Okay, more example, if we talk about that कि मैं बोलूंगा, बोलना क्या होता है? speak. Right, good. बोलना होता है speak, और बोलूंगा will speak. Okay, और shall speak. Understood? More example like that, पढ़ूंगा, पढ़ना क्या होता है बेटा? read. Right, क्या होता है? read. और पढ़ूंगा, आगे ही आ गया तो क्या यूज करेंगे? will read. Very nice, good. Okay, हाँ, more example if you talk about that कि दौड़ूंगा, दौड़ना क्या होता है बेटा? दौड़ना होता है run. Very nice, run. तो इसके साथ क्या लगाते हैं? will लगा देंगे. Okay, will run. Good, very nice. Okay, another example, सोऊंगा, सोना क्या होता है? Very nice, sleep. sleep. और सोऊंगा, आगे क्या गया? It means we have to use in our second language in English क्या यूज करते हैं? will. Okay, will sleep. Good, very nice. Okay, another example if you talk about that, हाँ, बोलते हो कि लिखूंगा, लिखना क्या होता है? Right, good. लिखना होता है right. Okay, और लिखूंगा तो आगे ही आ गया तो क्या यूज करेंगे बेटा? will write. Understood? So now you have learned how to make just only half sentence. अभी तक आपने सीखा है कि हाफ सेंटेंस कैसे बनाते हैं. ओके, नाउ इट्स टर्न टू लर्न हाउ टू मेक कंप्लीट सेंटेंस. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग वंस, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं. टुडे वी हैव स्टार्टेड आवर जूनियर फर्स्ट कांसेप्ट, एंड इन दिस कांसेप्ट वी आर लर्निंग अबाउट फ्यूचर एक्शन. ओके, एंड फ्यूचर एक्शन वी शो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न हाउ टू शो इन फर्स्ट लैंग्वेज. सबसे पहले हम सीखेंगे कि हिंदी में कैसे शो करते हैं, बाय यूजिंग दीस थिंग्स, गा, गे, गी, जैसा कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी पढ़ा है. सो सेम थिंग इज देयर. ओके, सो अब हम सेकेंड लैंग्वेज में, यानी कि हमारी टारगेट लैंग्वेज जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, उसमें सीखने के लिए हम फर्स्ट लैंग्वेज की मदद लेंगे. वी विल टेक हेल्प ऑफ आवर फर्स्ट लैंग्वेज.
तो जब हमें गा गे गी मिले फर्स्ट लैंग्वेज में, तब हमारे पास कुछ सफिक्सेस होते हैं इंग्लिश में, क्या होते हैं, विल और शैल इन सेकंड लैंग्वेज। ओके, सेकंड लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश। तो जब हमें गा गे गी मिले फर्स्ट लैंग्वेज में, तब हम इंग्लिश में क्या यूज करेंगे, वी विल यूज विल एंड शैल। क्या यूज करेंगे बेटा, विल एंड शैल। अंडरस्टूड? लाइक फॉर एग्जांपल कि मैं दौड़ूंगा, दौड़ना होता है रन, क्या होता है, रन। तो दौड़ूंगा तो हम क्या यूज कर देंगे, विल प्लस रन। अंडरस्टूड? विल रन। खाऊंगा, विल ईट। सोऊंगा, सोना होता है स्लीप। ओके, तो क्या यूज कर देंगे, विल स्लीप। ओके, लिखूंगा, विल राइट। अंडरस्टूड? सो लाइक दिस वी हैव टू यूज will and after action which we have to do. So that was the half sentence. अभी तक हमने सीखा है केवल half sentence. Now we will learn how to make a full sentence. As you know बेटा, just if we have to communicate with anyone, जब हमें किसी से बातचीत करनी होती है तो हम पूरे सेंटेंस में बात करते हैं, नहीं कि आधे सेंटेंस में बात करते हैं। We make full sentence when we answer, when we listen, when we reply anyone. तो इसीलिए हमें आना चाहिए कि कंप्लीट सेंटेंस कैसे बने। ओके, तो अभी आपने सीखा है कि मैं लिखूंगा, लिखूंगा यानी कि विल राइट। ओके, सो दैट इज द हाफ सेंटेंस। ओके, और अगर अब हमें कंप्लीट सेंटेंस बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट और यूज करेंगे। सब्जेक्ट यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, रोहन, पंकज, प्रिया, जो भी है, मम्मा, पापा, ब्रो, सिस, these are included in subject. Okay, like मैं लिखूंगा। ओके, अब हम खुद के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि मैं और ऐड कर दिया है, मैं लिखूंगा तो हम क्या यूज करेंगे, we will use I. Understood? क्या यूज करेंगे बेटा, I will write. But very nice. अगर ऐसे ही हमें बोलना हो कि मैं पढ़ूंगा, पढ़ूंगा, then in our second language क्या आ जाएगा यहाँ पे, read. ओके, खेलूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, we will use here that verb. ओके, खेलना क्या होता है, play. Understood? So that is about it, कि हम खुद के बारे में बात करेंगे कि मैं लिखूंगा, मैं खेलूंगा, मैं पढ़ूंगा। ओके, अगर हमें यानी कि दूसरे के बारे में बात करनी है, लाइक वो खेलेगा, तो अब इसकी जगह क्या यूज करेंगे, वो यानी कि वह। तो क्या आ जाएगा, आई की जगह क्या आएगा बेटा, क्या होता है, ही। ओके, बाकी एज इट इज रहेगा, ही विल प्ले। वो लिखेगा, ही विल राइट। अंडरस्टूड? ओके, वो सोएगा, he will sleep. पढ़ेगा, he will read. Understood? So this is just complete sentence. Okay? Except it. इसके अलावा आप और भी further subjects यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, भी मम्मा, पापा, ब्रो, सिस, अंकल, आंटी, तो बोलोगे कि पापा सोएंगे। कैसे बनाएंगे बेटा, पापा will sleep. क्या बोलेंगे, Papa will sleep. Simple. Just we don't have to change anything. Will be there. Subject लगाना है और जो हम verb कर रहे हैं. Okay? So यानी कि that is full sentence. So now we have learned how to make full sentence and how to show the future action. So as you know, it's enough for today. Rest of the things we will learn in our next class. बाकी बची हुई चीजें हम कल की क्लास में सीखेंगे. So that's all for today. Stay home. Stay safe. That's all for today. Have a good day. Bye bye. Thank you.